Hello students, in today's lecture of the liquidators account, we are solving the practical number 31, that is Mandi Limited. This is the most important sum. Mandi Limited went into the voluntary liquidation on the 31st March 2009. Balance sheet as is given. See first liability side, 10% debenture, unpaid debenture interest, then mortgage loan, investment, mortgage loan, machinery, provident fund, bank overdraft and creditors. Asset side is various assets is given. First point, creditor of the mortgage of loan have sold investment 60,000 and the machinery 3 lakh. Creditor included the unpaid salary of the two employees 5 months each for the 50,000 and the payable to the workers is 20,000. That means salary payable to the workers, it will come workers and workmen, it will paid before the preferential creditors, right? Then outstanding municipal taxes 2007-8 20,000 and 2008-9 10,000. So our current year is 8-9, so current year 10,000 is come into the preferential and it will come under unsecured creditors, right? Then land and building stock furniture was sold at 6 lakh, 2 lakh 20,000 and 70,000 respectively, and bad debts from the debtor amounted of rupees 40 lakh. That means total out of 1 lakh 40,000, 1 lakh 50,000, 40,000 is bad debt, remaining amount is collected. Then the liquidation expense were paid rupees 20,000. Then liquidator gets 2% commission on the asset realized by him. Debenture were paid on 30th June 2009. Unpaid preferential debentures dividend 10,000 rupees and prepare the statement on the 31st/7/2009. So let's get started with the calculation. Opening balance of the cash account, first we have to write, but there is no opening balance of cash is given. In the other sense, bank overdraft is given, so liability is given, right? So opening balance is not given, so we directly start with the asset realized. Asset realized, that is land and building stock and furniture 6 lakh, 2 lakh 20,000 and 70,000 respectively. So land and building 6 lakh, 2 lakh 20,000 and 70,000. प्लस डेप्टर्स की अमाउंट कितनी है 40,000 की बेड डेब्ट्स है, बाकी की अमाउंट रिसीव हो गई. दैट मीन्स 1,50,000 माइनस 40,000 बेड डेब्ट्स 1,10,000 विल बी रिसीव्ड. सो टोटल विल कम 10 lakh. असेट रियलाइज्ड 10 lakh, राइट? अब देख लेते हैं सरप्लस की वैल्यू क्या है या नहीं है. यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं. मोर्टगेज लोन ऑन द सोल्ड इन्वेस्टमेंट 60,000. यहाँ पे मोर्टगेज लोन है, इन्वेस्टमेंट 70,000. लायबिलिटी कितनी थी 70,000 की. 60,000 के हमने इन्वेस्टमेंट पे कर दिए, राइट? सो डिफरेंस कितना आया 10,000 रुपीज़. डिफरेंस कितना आया 10,000 रुपीज़. वो अभी भी देने बाकी हैं, राइट? पर वो 10,000 रुपीज़ है, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूड होंगे. समझ में आया? और एक बार समझाती हूँ. 70,000 रुपीज़ का लायबिलिटी थी, 60,000 के इन्वेस्टमेंट दे दिए, 10,000 रुपये अभी भी बाकी है, राइट? सो वो पेमेंट करने हैं, बट वो कहाँ पे आएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएंगे. 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़, राइट? अब मशीनरी की बात करते हैं. मशीनरी की लायबिलिटी, लोन की लायबिलिटी थी 2,40,000, उसमें से 3 लाख रुपीज़ मिले, राइट? सो रिमेनिंग सरप्लस हुआ. सरप्लस कितना हुआ 3 लाख माइनस 240, 60,000 का सरप्लस हुआ. तो वो सरप्लस हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड. समझ में आया?
अगर कम है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और लायबिलिटी ज़्यादा है तो हम वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे। ये पॉइंट था जो न्यू था, जो अभी तक नहीं आया था, राइट। सरप्लस का पॉइंट तो आ चुका था अभी हमने जितने भी सम किए, बट यहाँ पे न्यू आया था कि अगर इनफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पर भी नहीं मिल रही है तो बाकी की अमाउंट हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, राइट। नाउ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो हमने पे कर दिया इन द वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी, और मशीनरी का यहाँ it will come machinery. Then we will pay liquidation expense come 20,000. Then liquidator remuneration will come 2% of the asset realized by him. Asset realized is 10 lakh 2%, 20,000, right. And payment made of payable to the workers of rupees 20,000, that is the secured creditor, so it will come over here. Payable to workers 20,000 rupees, right. उसके बाद हम लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2% की है। सैलरी की कैलकुलेशन अगेन देख लीजिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है 4 मंथ सैलरी और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग और 20,000, बट वो पर पर्सन के लिए यानी कि पर एम्प्लॉय के लिए है, राइट। सो यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ की आउटस्टैंडिंग है? 2 एम्प्लॉयज़ की आउटस्टैंडिंग है, राइट। और 5 मंथ्स के लिए हैं, तो हमें कितनी चाहिए? सिर्फ 4 मंथ्स के लिए हैं, राइट। सो 50,000 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि मंथली सैलरी कितनी आई? 5,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय। सो 5,000 इंटू 4 मंथ्स, 20,000। एक्चुअल में कितनी आउटस्टैंडिंग है? टोटल दोनों की मिला के 50,000 है, और यहाँ पे भी 20,000 आएगी। यहाँ पे दोनों की मिला के 40,000 हो रही है। $5,000 एक एम्प्लॉय की है, तो दोनों एम्प्लॉय की 10,000 हुई। 10,000 इंटू 4, 40,000 ऐसे आए, राइट। एक्चुअल पेमेंट करने हैं 50,000, और यहाँ पे दोनों की मिला के बैलेंस आएगी 40,000। विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली 40,000 इज लेसर अमाउंट, सो एम्प्लॉय सैलरी वुड बिकम 40,000। देन म्यूनिसिपल टैक्स, करंट ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स आएगा 10,000 रुपीज़। देन और कोई भी प्रोविडेंट फंड या कुछ बाकी है? यस, प्रोविडेंट फंड 1,60,000। टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज 2,10,000। Total preferential creditors is 2,10,000. Now unsecured loan. Unsecured creditors में सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग था मोर्गेज लोन था इन्वेस्टमेंट का, जो 10,000 रुपये देने बाकी थे, राइट। सो वो आएंगे मोर्गेज लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹10,000। सो मोर्गेज लोन की 10,000 जो बाकी था सबसे पहले वो आएगा। देन बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹30,000, राइट, एंड अदर क्रेडिटर्स। अब अदर क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख रुपीज़, राइट। उसमें से इंक्लूड क्या है? तो 2
एम्प्लॉयज़ की सैलरी दैट इज़ 40,000 एंड पेमेंट वर्कर्स 20,000, ये दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी कि 40,000 प्लस 20,000 60,000 वो इंक्लूड है, राइट। सो 2 लाख रुपए में से वो हम एक्सक्लूड कर दे 60,000, तो बाकी के कितने बचते हैं 1,40,000, राइट। एंड म्यूनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये इंक्लूडेड है, अगर यहाँ पे इंक्लूड होता तो वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर लेते कि ये इसमें इंक्लूड है तो हम वो डिडक्ट नहीं करते, बट यहाँ पे क्या है एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, राइट। सो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स दिस ईयर का प्रीसीडिंग ईयर का इंक्लूड होगा 20,000 रुपीज़। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 दैट इज 2 लाख रुपीज़। 2 lakh rupees after the unsecured loans. I'm really sorry कि मैं डिबेंचर्स डिडक्ट करना भूल गई। सबसे पहले डिबेंचर्स आएंगे फिर अनसिक्योर्ड लोन्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ बट वो आएंगे दिस पॉइंट पे, राइट। डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज़, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 40,000 का और वो पे कर रहे हैं हम 30 जून को, यानी कि अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दैट इज 10,000 रुपीज़। टोटल डिबेंचर अमाउंट इज 4,50,000, तो ये सबसे पहले पेमेंट होगा। सो यहाँ पे 4,50,000 डिबेंचर्स के आएंगे, गलती से मैंने नीचे लिख दिए हैं। बाद में पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है 10,000 रुपीज़। सो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ 1,10,000। बट पहले देख लेते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा पे करते हैं या नहीं। तो टोटल रिसिप्ट हैं 10,60,000, उसमें से सबसे पहले ये तीनों पे होंगे 20 दैट मीन्स 60,000, देन 2,10,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, बाद में पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को, बाद में पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद अमाउंट बचती है 1,40,000। दैट मीन्स वी कैन पे द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ऑल्सो। सो 1,40,000 में से 1,10,000 बात कर देते हैं, यानी कि अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई 30,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और 60,000 और है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम पे नहीं कर सकते, तो हम क्या फाइंड करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी, राइट। कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले सरप्लस देख लेते हैं। सरप्लस कितना है, अभी भी हमने देखा 30,000 सरप्लस है। एक्चुअल पेमेंट कितना करना है 1,60,000 रुपीज़ का, 1,60,000 रुपीज़ का। इक्विटी शेयर दोनों को मिला के 1 लाख प्लस 60,000 1,60,000। डेफिशिएंसी विल कम 1,30,000। 1,30,000 की क्या आई डेफिशिएंसी आई। ये डेफिशिएंसी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रपोर्शन में। कौन से प्रपोर्शन में, दोनों की नॉमिनल वैल्यू के, यानी कि जो भी ए और बी का नॉमिनल वैल्यू है उसके हिसाब से शेयर करें। पहले तो देख लेते हैं दोनों इक्विटी शेयर की अमाउंट सेम है। यस, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ दोनों की शेयर की अमाउंट सेम है, तो हम एज अ नंबर ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 10,000, वो ए के हैं। बी के देख लेते हैं 60,000 डिवाइड बाय 6 दैट इज 10,000, यानी कि दोनों का प्रपोर्शन क्या होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों के इक्विटी शेयर कितने हैं सेम हैं।
तो 1:1. So proportion value of the both of the shares will be equal 1:1, यानी कि कैपिटल डेफिशिएंसी इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि 1,30,000 इक्वल में डिवाइड होंगे तो कितने आएंगे 65,000 एंड 65,000. सो पेड अप कैपिटल माइनस डेफिशिएंसी. पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है ए का और 65,000 रुपीज़ कैपिटल डेफिशिएंसी है. अगर पेड अप कैपिटल ज़्यादा है और डेफिशिएंसी कम है तो उसे मिलेगा, यानी कि 1 लाख माइनस 65,000 दैट इज़ 35,000. एंड बी का 60,000 पेड अप कैपिटल है माइनस 65,000 कैपिटल डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स माइनस 5,000. सो यहाँ पे आएंगे रिटर्न एंड टू बी कॉल्ड. यहाँ पे क्या आएगा टू बी कॉल्ड 5,000 और 35,000 रिटर्न. सिर्फ ए को 35,000 मिलेंगे, 30,000 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, 5,000 बी पे करेगा, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 रुपीज़, 5,000 डिवाइड बाय 10,000, that is 0.5 rupees per share we have to hold. 5,000 डिवाइड बाय 10,000. और यहाँ पे किसको मिलेगा, ए शेयर कैपिटल को मिलेगा. A's equity shareholders will receive 35,000. So 35,000 divided by 10,000, that is rupees 3.5 per share he will receive. लास्ट में टोटल करेंगे 10,65,000